Okay, Ji, today we are going to start 1.8, exercise 1.8. And in this exercise, our core focus will be on the convergence, right? Convergence between, first of all, ordinary numbers. Ordinary numbers. Okay, so if you are asked to write a number in ordinary form, that means you have to remove the power. Remove the power of 10. Okay, the power of 10. Okay, number one thing, and number two is if you are asked to write any number in a standard form. Okay, so standard form, that means you have to put a non-zero digit. Okay, non-zero digit before this point. Okay, non-zero digit. Non-zero digit means other than zero. Clear? So let's start with question number one. And it says that write the following as ordinary numbers. Part A, 2.3725 into 10 to the raised power 3, right? So we have to write this number as ordinary numbers, okay? Ordinary numbers, so that means we have to remove this power of 10, okay? Now the point is that over here, the power is positive. Okay, the power is positive, so we have to shift this point to the right side. Okay, we have to shift the point to the right side, so it will become 2 3. This will be your answer, 2372.5, right? Okay, so now if i do part F, so they are saying 8.63 into 10 to the raised power minus 4. Now when the power is negative, we have to shift to the left side. Okay, the point has to be shifted to be the left side. Okay, so 863, how many places do we have to move? 4 places. So 1 2 3 and 4. Clear? This is your answer. Now let's do the part G. I think this is the same. You need to shift to the left side. Okay, 5 decimal places. Okay, let's do question number 2. Write the following numbers in the standard form. In the standard form. Now you know that what a standard form is. So you have to put the non-zero digit before the point. Okay. For example, we have this number 6 7. पार्ट जे, मैं आपको पार्ट जे करवा देता हूँ क्योंकि पार्ट ए और जे को अगर देखें तो 6780, द पॉइंट इज हियर, राइट? अब आप ए और जे को दोनों को देख लें तो यू विल बी एबल टू डिफरेंशिएट। ठीक है। अच्छा, नाउ दिस पॉइंट विल बी शिफ्टेड टू द लेफ्ट साइड। ठीक है, कितने प्लेसेस जाएगा? हमने इतना मूव करना है इसको कि ये पॉइंट से पहले नॉन जीरो डिजिट आ जाए, और वो नॉन नॉन जीरो डिजिट क्या हो गया? एक डिजिट हो, एक सिंगल। ओके, तो वो आ गया आपका 6। अगर आप इसको पीछे लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगी। नाउ वी हैव टू पुट ए 10 टू द रेस पावर ओवर हियर। हाउ मेनी प्लेसेस हैव वी मूव्ड? 1 2 and 3, so we have to write a positive power 3. Okay, ऐसा क्यों किया? पॉजिटिव पावर क्यों लगाई मैंने? बिकॉज देखें, दिस विल इंश्योर कि अब अगर आप वापस जाना चाह रहे हो तो ये 6.780 जब मल्टीप्लाई होगा 10 टू द रेज पावर 3 से, तो इट विल गिव यू द सेम नंबर दैट वाज गिवन इन द क्वेश्चन। ये देखो, वापस से वो नंबर आ गया। सही है? कब आया? जब आपने 10 की पावर पॉजिटिव 3 से अब मल्टीप्लाई किया तो वापस हम आ गए। तो दिस इज हाउ कंपनसेट योर आंसर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। आपने जो चेंजेस करोगे आप
आपने उसको इसके अकॉर्डिंगली लिखना है, ठीक है। अच्छा, लेट्स डू द पार्ट डी। हम डी वाला करते हैं। डी इज 0.006793. Okay. Now here you have to shift to the right side because you cannot go to the left side because there is no non-zero digit. Okay, so you need to shift to the right side. 1, 2 and 3, 4. अब 4 डेसिमल प्लेसेस आप राइट साइड पे गए हो, ठीक है। अब जैसे ही 4 डेसिमल प्लेसेस राइट साइड पे गए हो तो अब आपका -4 में आना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब आप 10⁻⁻4 वाले नंबर से इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको वापस से ये नंबर मिल जाएगा, 0.006793 वाला नंबर आपको वापस मिल जाएगा। ओके, लेट्स डू पार्ट के। 0.009642. Okay, now I'm going to shift to this point to the right side. 1, 2, 3. Okay, now I have to move to the 3 decimal places. So it's going to be 3.6432 into 10 to the raised power -3. Clear? It's a reverse process that we were doing in the question number 1. Okay. Actually, now there are word problems. Okay. Question number 3 says that rewrite the numbers in each case in standard form. The age of the sun is approximately 46, 100 years. Okay. अभी आपसे कह रहे हैं कि in the standard form. तो बेटा आपको ये दिए हैं 1 set, 2 set and 3 sets. Okay, इतने years आपको approximate year दिया हुआ है, ठीक है। नाउ वी हैव टू राइट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका पॉइंट अभी यहाँ पर है, सॉरी, जो आपका ये नॉर्मल फॉर्म है, ठीक है, ऑर्डिनरी फॉर्म है, इसके अंदर आपको पॉइंट यहाँ दिया हुआ है। नाउ यू नीड टू शिफ्ट दिस पॉइंट टू द लेफ्ट साइड सो दैट इट कैन बी कन्वर्टेड, इट कैन बी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट। सो हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस यू हैव टू मूव? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, राइट। तो आप 10 प्लेसेस गए हो, ये आपका पॉइंट यहाँ पे आ गया, इंटू 10 की पावर 10, +10। क्लियर? सही है। इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क मी और यू कैन राइट इन अ चैट बॉक्स दिस प्रॉब्लम। अच्छा, पार्ट बी के अंदर हमसे क्या कह रहे हैं भाई? कह रहे हैं द डिस्टेंस फ्रॉम मार्स टू द सन इज अप्रोक्सीमेटली 2279000000 किलोमीटर। अब इसको भी हमसे वो कहेंगे कि आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के दिखाएं, ठीक है। 000000 किलोमीटर। ओके, अच्छा, नाउ वी हैव टू शिफ्ट दिस पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8, right? So 2.27 into 10 to the raised power 9 भी लिख दो अगर लिखना है तो। कितने गए थे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, so +8, ठीक है। So you can complete the part C yourself. Work out the following, giving your answer in the standard form. Question number 4. Question number 4. Work out the following, giving your answers in standard form. So part A, 8,000 multiply with 6,000, right? So 8 6 are 48. 8 और 6 को आपने मल्टीप्लाई किया, 48 आ गया। Now how many zeros are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So put the 6 zeros together. ठीक है। Now write in the standard form. This is the requirement of the question. सही है। तो
1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 10 to the raised power positive 7 क्लियर सही अच्छा जी लेट्स डू पार्ट सी 0.0006 ओके टाइम्स 0.000092 sorry 02 right जी now either you can shift each number in the decimal form sorry in the standard form first आप इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लो ये भी कर सकते हो अदरवाइज आप एक ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन जितना करते हो वो भी कर सकते हो बट इट्स बेटर टू convert these numbers in the standard form make sure कि इनके जो 10 की पावर्स होंगी वो आप सेम रखेंगे ठीक है राइट अब कैसे करेंगे देखिए 1 2 3 एंड 4 राइट 4 डेसिमल प्लेसेस पर तक लेके जा रहा हूँ तो 6.0 into 10 to the raised power -4 got it okay after that you need to shift this point as well 1 2 3 and 4 clear तो अब आप देखो कि आपने क्या किया 0.0 into 10 to the raised power -4 कर दिया now if you can multiply this 6 with 0.2 that will be fine otherwise if you feel that it is difficult so you need to shift the point so that this can become in a standard form for example अगर आप इसको 60 बना देते हो आप अगर इसको 60 बना देते हो that means कि आप इसको एक पॉइंट और आगे शिफ्ट कर रहे हो तो ये 60 बन जाएगा तो you need to increase this power okay similarly आप इसको भी पॉइंट को आगे लेके जाते हो तो ये बन जाएगा 2.0 into 10 to raise power -5 ओके अब मेक श्योर रिमेंबर दिस थिंग मेक श्योर कि आपके ये जो 10 की पावर्स हो ना मल्टीप्लिकेशन करते हुए ये सेम होनी चाहिए ठीक है क्लियर अच्छा जी अब आप क्या कर रहे हैं कि इनको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं ओके इनको आप क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं राइट सो 60 times 2 is going to be 60 times 2 is going to be 120 ये मैंने बहुत घुमा के किया है आप लोगों के लिए कि इस स्टेप के अंदर भी हम 6 मल्टीप्लाई बाय 0.2 पहले कर सकते हैं और इस वाले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं 60 टाइम्स 2 कर रहे हैं ओके तो यहाँ आप देखें तब भी आपको वही आंसर मिल जाएगा आगे जाकर ठीक है सो इट इज गोइंग टू बी 120 into 10 to the raised power minus -10 okay why because -10 okay let me recall that concept कि हमने ही पढ़ा था जब भी प्रोडक्ट में बेसिस सेम होती हैं तो उनकी पावर्स हम मिला के लिख देते हैं यू रिमेंबर ठीक है सो 120 टाइम्स 10 to the raised power -10 ठीक है ये हो गया अब हम इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो हाउ कैन वी डू दिस हम कैसे करेंगे भाई हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि ये पॉइंट यहाँ लगा हुआ है ना अगर हम इसको कितने प्लेसेस लेके जाएंगे एक और फिर दो दो प्लेसेस लेके जाएंगे तो बेटा हमने लेफ्ट साइड पे जब खुद से पॉइंट पीछे लेके जाते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव में आती है पावर और ऑलरेडी पावर जो आपकी लिखी हुई है वो किस में है 10 की पावर माइनस से में लिखी हुई है तो अब आप इन दोनों को वापस से मिला के लिखेंगे तो ये आपकी बन जाएगी -8 दिस इज योर फाइनल आंसर अब ये इतना लंबी हो गई इतनी लंबी हो गई कि कुछ लोग कहेंगे फजूल में जो है ना वो इतना घुमा के किया है ये सिंपल ऐसे भी तो हो सकता था ये जी बिल्कुल ऐसे भी हो सकता है ऐसे कर लें कि 6 टाइम्स 0 पॉइंट इस स्टेप से देखें आप लोग 6 टाइम्स 0.2 is going to be 1.2 clear 6 multiplied by 0.2 is 1.2 into 10 to the raised power -4 और 10 to the raised power -4
तो 1.2 इंटू 10⁻⁻⁸ तो ये तो आपका ये भी आंसर वैसे ही वही आ रहा है आंसर, ये वही है, सेम है। क्लियर? ठीक है, कोई कंफ्यूजन आई होप नहीं होगी, ठीक है। सो आप कोई भी मेथड चूज करें, बस आपको लॉजिक्स हर तरीके से आनी चाहिए कि कहाँ से कहाँ पे हम किस तरीके से उस चीज़ को घुमा के भी कर सकते हैं, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है, या हाउ कैन यू मैनेज इट। राइट, सो दिस वाज पार्ट सी, ठीक है। और अब हम कर रहे हैं, लेट्स डू वन क्वेश्चन फ्रॉम डिवीजन, पार्ट जी कर लेते हैं इसका, ठीक है। पार्ट जी में 0.004 डिवाइडेड बाय 10,000, okay. Now it is very easy when you can when you if you can make the numbers in the standard form or in the form where 10 to the powers are same, okay, for each number. So for example, if you do in this way कि आप इस नंबर को बहुत आसान है वैसे भी ये तो, इसको हम इतना लंबा क्यों सोचें, हम इसको ऐसे ना कर लें कि डिवाइड हो रहा है 10 की पावर कितने में से, हाउ मेनी जीरोस आर देयर, 2, 3 एंड 4, तो ये कितने हुए, 4 हो गए, ठीक है। मैंने इसी चीज को पूरी चीज को इस फॉर्म में लिख दिया, फ्रैक्शन फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या सीखा है कि आपने अगर डिवाइड करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं, और इसको अगर ऊपर लेके जाना चाहेंगे तो कैसे लेके जाएंगे भाई, इसके पावर चेंज कर देते हैं, वेन एवर वी यू नो फ्लिप द नंबर, ओके, फ्रॉम डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर, तो उसके पावर क्या हो जाती है, उसका साइन चेंज हो जाता है, यही सीखा है हमने। अब ये नेगेटिव पावर आ गई है, राइट, तो इस नेगेटिव पावर को आप कैसे लिख सकते हो, इसको कैसे यहाँ पे हैंडल करोगे, इस नेगेटिव की वजह से ये पॉइंट पीछे जाता जाएगा, सही है। सो 4, 0, 0, और पॉइंट यहाँ पे था ना, ठीक है, तो अब हम इसको करते हैं जरा, कहाँ तक जाना है हमें, जी, 1, 2, 3 एंड 4, okay. So your final answer would be 0.1234, और ये दो जीरोस पहले से थे, दिस इज योर आंसर, राइट। नाउ वी हैव टू राइट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, अब हमें उसने कहा था ना स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा, तो वी हैव टू शिफ्ट दिस पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, तो 4.0 × 10⁻⁻⁷ अब एक क्वेश्चन फिर दोबारा आ सकता है, कंफ्यूजन, कि भाई इतना लंबा घुमा के पहले आप यहाँ पे न्यू लेकर आए, उसको आपने पीछे किया, ऐसा क्यों किया, ना करते क्या जाता, वैसे भी हो सकता था, चलें अब वैसे करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू डू नॉट शिफ्ट दिस फ्रॉम हियर, अगर आप यहाँ से देखें, तो मैं इसी चीज़ को यहाँ से समझाऊं, इस स्टेप से, अगर समझाऊं कि देखें 0.004 इंटू 10⁻⁹ यहाँ पे था, ठीक है। तो वाई आर यू ट्राइंग टू रिमूव दिस 10⁻⁻⁴? इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, व्हाट वी गोना डू इज कि ये नंबर, आप ये पॉइंट को आप यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, है ना, तो कितना हो जाएगा, 4.0, हाउ मेनी प्लेसेस वी हैव मूव्ड, 3 प्लेसेस, तो अब आप यहाँ पे -3 अप्लाई कर दो, ठीक है, और -4 तो पहले से ही है, तो आपका ये नंबर क्या बन जाएगा, 4.0 इंटू 10⁻⁷ कैसे -7 हुआ, -3, -4, -7 होता है, सेम आंसर आ रहा है। क्लियर? आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू।
अच्छा जी, इन्होंने एक स्क्वायर्स दे दिए एच आई और जे में, ठीक है। हम इसका करते हैं, जे वाला पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी ऑलराइट, कौन सा कर रहे थे हम? पार्ट पार्ट जे की बात कर रहे थे। ऑलराइट, ओके, सो पार्ट जे हमसे क्या कहा जा रहा है, 0.0005 टू द पावर स्क्वायर, ओके। ठीक है। अब क्या करेंगे हम, व्हाट व्हाट आर वी गोइंग टू डू इज कि आपके पास ये नंबर्स ऐसे दिए गए हैं, ठीक है। आप अपना कॉन्सेप्ट ज़रा यूज़ करें कि आप इस पावर को छोड़ दें, आप इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कर लें। सही है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लें पहले। So it's going to be 1, 2, 3, and 4. So 5.0 into 10 to the raised power negative 4 because you have moved the point to the right side yourself, और फिर आपका -4 आ गया, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो कि जब आप पावर टू द पावर यू रिमेंबर मल्टीप्लाई होती है, तो आपको याद है पावर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अप्लाई करेंगे हम, ठीक है। इंडाइसिस के अंदर हमने पढ़ा। तो 5 के ऊपर भी पावर आएगी और 10 की पावर -4 पर भी पावर आएगी, तो 5 के ऊपर जब पावर स्क्वायर होगा तो इट्स गोइंग टू बी 25, क्लियर, ठीक है। और जब 10 की पावर -4 होगा, 10 की पावर -4 पे जब पावर आएगी 2, तो इट्स गोइंग टू बी -8, ओके। आई होप इट इज क्लियर नाउ, बट यू नीड टू शिफ्ट दिस इन द इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। आपका ये पॉइंट है, आपने पॉइंट को पीछे लेके जाना होगा। अब आपने पॉइंट को खुद पीछे लेके गए हैं, तो 10 की पावर क्या आ जाएगी, +1 आ जाएगी, ठीक है। जब आप खुद से राइट साइड पे लेकर आते हैं तो नेगेटिव में लिखते हैं पावर, जब आप खुद से पॉइंट को लेफ्ट साइड पे लेके जाते हैं तो पॉजिटिव में पावर को लिखते हैं खुद से आप, ठीक है। Right now 2.5 into 10 to the raised power +1 -8. It's going to be 2.5 into 10 की power -7. This is your final answer. I hope the concept is clear now. I would like to give you question number 5 as a homework, or rest of the questions inshallah we'll be discussing in the next class, okay?